Hello children, today we'll discuss class 9 science. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. This is chapter 9th of your NCERT book. So see first what are the topics we are going to cover. Introduction of force, balanced and unbalanced forces, Newton's first law of motion, inertia, momentum, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, law of conservation of momentum, and we will do numerical problems. So see, in the first figure, this man is pulling the load, this load. Okay, whereas in the second figure, this man is pushing the wall. So children, simply pushing and pulling strength is called force. Apart from pulling, pushing, lifting is also a special type of force. When we lift anything against the gravity, that is also a force. Okay, now let's define what is force. A push or pull on a body is called force. We can also define force in another way. What is that? See, force is an external agent which when applied on a body can bring about changes in it. So force को हम लोग क्या मानेंगे? एक एक्सटर्नल एजेंट हम लोग मानते हैं. जब ये एक्सटर्नल एजेंट कोई बॉडी पे एक्ट होता है तो ये बॉडी क्या हो जाता है? रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, उसके शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, उसके स्पीड चेंज हो सकता है. सो दीज आर द चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग when on a body when it is applied on it. Now let's see what are the effects of force. The first effect is change in position. See the example, kicking of a football. Position means rest to motion or motion to rest, है ना. तो जैसे ये किक करेगा, this boy will kick the football will change from rest to motion. In the same way, अगर कोई फुटबॉल मोशन में है तो by applying force we can stop it. So force can bring change in position. Next is change in direction. So force can also bring changes in direction on a body. So see this, applying force on a steering wheel of a car. This driver वो अगर वो फोर्स अप्लाई करेगा स्टीयरिंग व्हील पे तो कार का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो दस द फोर्स ब्रॉट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. द थर्ड चेंज इज चेंज इन डायमेंशन. डायमेंशन मतलब होता है शेप एंड साइज. ओके, तो force can also bring a change in shape and size of the body. See this example, squeezing a tube of toothpaste. See third diagram, this by applying a force the shape of the toothpaste is changed, whereas the last change, that is the change in speed. Force can also change the speed of a body. Example, speed up of a bicycle by applying force. So this boy, if he apply more force on a paddles, okay, then the speed of the cycle will increase. अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा पैडल्स पे तो उसके जो साइकिल्स का स्पीड है वो बढ़ जाएगा. तो फोर्स कैन ब्रिंग चेंजेस इन द स्पीड ऑल्सो. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ force. In the earlier classes we have learnt about contact and non-contact force, but in this class we will learn about balanced force and unbalanced force. तो सबसे पहले balanced force को एक example से समझते हैं. So this F is the force applied on a body by you. Okay, this is heavy box.
है ना। ये बॉडी जो है ये क्या है, एक हेवी बॉक्स है, बहुत भारी है। तो यू अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज the magnitude of the force is F. At the same time, your friend applied the same magnitude of force, that is F, but in the opposite direction. So what will be the resultant force acting on this box? So resultant force acting on the box will be what? You both have applied F force. The magnitude of the force is F. But since the direction is opposite, so the two forces will be subtracted, and then the overall or net or resultant force acting on this box will be 0. So how can we define this balanced force? So balanced force means if the resultant of all the force acting on a body is 0, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि ये बॉक्स पे जो टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज 0. सो such force is called balance force, and in case of balance force the body will not move. Now see the next example. Here four forces are acting here. F, here also F, this side also F, and this is also F. So in this case, four forces are acting. This force and this force are equal in magnitude and opposite in direction. So the resultant force or resultant force will be 0. In the same way, this force and this force will cancel each other. So overall force, the resultant force, that is net resultant force acting on the body is also 0. Okay, so that's why this box will also not move, and this is an example of balanced force. Now let's see about unbalanced force. What is this? Suppose this is again a heavy box, okay, and one force is acting here. By the magnitude of the force is F. So if this force is greater than the weight of the body as well as friction of the body, okay, then the body will move. So since only one force is acting here, since only one force is acting on the box, so such force is called unbalanced force. Or if one more force is acting on the body, okay, and the value of that force is also F, then in that case, since the फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों फोर्स जो है ना सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज F प्लस एफ. देन इट मीन्स इफ द फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2F, F प्लस एफ, दैट इज 2F. ओके, एंड ऑब्वियसली इट इज ग्रेट नॉट इक्वल टू 0. रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 0 नहीं है, एंड सच फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सी again this heavy box, and you are pulling with a force of 2F, and your friend again pulling it by F force. So you are applying a greater force than your friend, okay, but both are applying in opposite direction. दोनों opposite direction में apply हो रहा है, तो क्या होगा कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी, सिंस द ऑपोजिट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो इट विल बी 2F minus F, so that's equal to F. Okay, so resultant force is F, that is not equal to 0, and this is also an example of unbalanced force. So one thing you must note, that unbalanced force produces motion in the body. Okay, now one activity for you. See this figure, this is you and this is your friend playing a tug of war game, and both are pulling the rope with same force F. Now decide who will win the game. Think. Yes,
nobody will win because the resultant force here is 0 because you both are applying same force but in the opposite direction. So one thing you should note that unbalanced force produces motion in a body और stop a body. unbalanced force में क्या होता है, motion होता है. okay, can produce motion in the body और stop the body. अगर कोई body मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके. बट बाय अप्लाइंग बैलेंस्ड फोर्स वी कैन नॉट ब्रिंग बॉडी इनटू मोशन, और मोशन में कोई बॉडी है तो उसको हम स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यूड इन मोशन in a straight line with uniform motion unless some external force act on it to change its state of rest or motion. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दिस बुक इज एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. ये बुक रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है. ओके, तब वो जाके रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो सकता है. दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ. दिस एक्सटर्नल फोर्स कैन बी पुश, पुल, है ना, लिफ्ट, एंड इट कैन बी एनी अदर थिंग ऑल्सो. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ अ बॉडी इन मोशन, ये बॉडी जो है मोशन में है और ये मोशन में ही रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक कोई फोर्स इस पे अप्लाई ना हो. मोशन को रेस्ट में तब तक नहीं हो सकता ये, है ना. ये मोशन को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका मोशन रुक सकता है. तो ये दो तरीका है, बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, प्रेशर फोर्स ऑन द ब्रेक, और बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन से भी हम रुक सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, वाल एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है और वाल से टकरा के कोलिजन होके वो गिर जाता है और उसका मोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो रेस्ट में हो जाता है. तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक कोई बॉडी पे अप्लाई नहीं होगा तब तक वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक चीज़ मिलती है, दैट इज इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है ना अपने से रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती है, या मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आ सकती है. तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो रोकती है उसको रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए. एंड यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ द बॉडी बोलते हैं. ओके, वन थिंग यू मस्ट नोट दैट इनर्शिया जो होती है ना, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. इनर्शिया जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ कोई भी बॉडी के मास का. तो यहाँ पे देखो, ये लार्जर मास है, ये स्मॉलर मास है, तो इनर्शिया किस केस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली लार्जर बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया. इट मीन्स लार्जर अगर कोई बड़ा बॉडी है तो उसको रेस्ट अगर में है वो, तो उसको मोशन में जाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वेयर एज इन केस ऑफ स्मॉलर मास, जैसे ये स्मॉलर मास है, तो स्मॉलर मास के केस में क्या होगा? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? कम होता है, तो इसीलिए उसमें हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए. Now types of inertia, that is first one is inertia of rest. तो inertia of rest क्या करता है? कोई भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में जाने से रोकती है. एग्जाम्पल, when a cardboard is pulled the coin falls into the glass, है ना. This will learn in the next slide in detail. Next is inertia of motion. Inertia of motion क्या होता है कि
बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जो मोशन में रहता है तो उसको रेस्ट में आने से रोकती है। ऐसा प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द ड्राइवर जर्क्ड फॉरवर्ड। ये भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सी द एग्जाम्पल, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है ये। ओके, नाउ सी, जब ये बस जो होते हैं रेस्ट में रहते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि पैसेंजर्स का होल बॉडी रेस्ट में रहता है। बस रेस्ट में है, पैसेंजर का होल बॉडी भी क्या होता है? रेस्ट में होता है। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आता है, बस जैसे ही चलना शुरू करती है, मोशन में आते हैं, ओके, एट द सेम टाइम हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, लोअर पार्ट ऑफ जो बॉडी है वो क्या होता है? बस के साथ साथ ये भी मोशन में आ जाते हैं। बट जो अपर पार्ट है ना बॉडी का, वो क्या होता है? अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट बस के साथ नहीं होता है उसका, तो इसीलिए वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अभी भी मेंटेन कर रहा होता है। तो अब ये कंडीशन थिंक करो कि हमारा पाँव आगे की तरफ जा रहा है, बट हमारा जो अपर पार्ट है ना बॉडी का, वो क्या हो रहा है? अभी भी रेस्ट को मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पीछे की तरफ गिरेंगे। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ inertia of rest. The second example, it is also a example of inertia of rest. तो देखो ये ग्लास टम्बलर है, that is in rest. इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है और in the middle a coin is placed. तो करना क्या है कि कार्डबोर्ड को पकड़ना है और वेरी फास्टली उसको पुल करना है अपने तरफ, जैसे सेकंड फिगर में हमने देखा है। पुल करने के साथ ही क्या होगा? ये कॉइन जो है ग्लास के अंदर चला जाएगा, कार्डबोर्ड इधर आएगा और कॉइन जो है नीचे ग्लास में चला जाएगा। सो व्हाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे हुआ कि जब दोनों ही चीज रेस्ट पे थे। फर्स्ट फिगर को देखते हैं, कार्डबोर्ड और कॉइन रेस्ट में थे, तो दोनों ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहे थे। जैसे ही हमने कार्डबोर्ड को पुल किया तो कार्डबोर्ड क्या हो गया? मोशन में आ गया। बट कॉइन जो है अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है ना। उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए, है ना, उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, और तब तक क्या होता है? कार्डबोर्ड वहाँ से दूर चला जाता है, इसीलिए वो क्या होता है? नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी व्हाट इज दैट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब गाड़ी चल रही होती है ना, तो क्या होता है कि अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। ये फिनोमेनन होता है इस तरह का, हमेशा हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। वाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम लोग गाड़ी मोशन में रहती है तो हमारा फुल बॉडी क्या होता है? मोशन में होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगती है ना तो गाड़ी रुक जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ये कार या बस या कोई भी व्हीकल्स का, तो वो क्या होता है? वो भी रेस्ट में आ जाते हैं। बट अपर पार्ट जो है ना, ये अपर पार्ट जो है बॉडी का, वो क्या होता है? अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा होता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन को ब्रेक करने में थोड़ा सा समय लगता है, और बाय दैट टाइम क्या होता है कि हमारा पाँव तो वहीं पे रेस्ट हो गया, है ना। जैसे गाड़ी रुकी तो वो भी रुक गया, बट बॉडी अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। Okay, so I hope you have understood this. Next, momentum. तो मोमेंटम क्या होता है? कोई भी बॉडी के उसके मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? मोमेंटम बन जाती है। तो मोमेंटम जो होती है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट P equal to m into v, that is momentum equal to mass into velocity.
अब देखना है कि वेलोसिटी जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने पढ़ा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। इन द सेम वे मोमेंटम भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होने का मतलब है कि मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगा, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखते हैं मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया ये? केजी मीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो now we will do some numericals based on momentum. So calculate the momentum. यहाँ पे momentum निकालना है। mass of the body is given, moving with a speed of 5 meter per second. तो mass ने हमें मिल गया है, velocity मिल गया है, we need to find momentum. तो momentum equal to क्या होता है? m into v, और mass को हम SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 200 divided by 1000, that इट विल कन्वर्ट इनटू केजी, है ना। तो इसको हमने यही किया है। और वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? इसमें हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ऑफ अ कार वेजिंग 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंड 72 पर आवर इज द फाइनल वेलोसिटी, इट इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड मास इज 1500। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? पहले हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फिर फाइनल मोमेंटम निकालना है, फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल करने से हमको क्या निकल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज IP, दैट इज द फॉर्मूला इज m इंटू यू। तो m कितना है? 1500, एंड u इज हाउ मच? 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज़ याद रखना कि 36 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो किलोमीटर पर आवर को जब भी हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। एंड यू विल गेट द इनिशियल मोमेंटम हाउ मच? 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट किया हमने, और दैट इज 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया इसको। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज अ मैन थ्रोज अ बॉल weighing this much. So mass is given vertically with a speed of 10 meter per second. So initial velocity is given to you, and ball कैसे किस तरह से फेंका है? वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है। What will be its initial momentum? तो इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू, एंड यहाँ भी हमको मास को kg में कन्वर्ट कर लेना है, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 1000। Okay, you will get 0.05 kg. Okay, so that is this one, and initial velocity 10, you will get the answer. Now next one is what would be its momentum at the highest point of the flight. तो जब भी कोई स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, कितना होता है? 0 हो जाता है ना, तभी तो फिर वापस वो आता है। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इसका हमेशा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0। सो एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी, ओके, एंड मास इज 0.5, ओके, एंड वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो देयर प्रोडक्ट विल आल्सो बी 0। नेक्स्ट, वी विल रेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। तो इसमें ये बोला गया है कि एक बॉडी है,
जिसका मास m है एंड वो ट्रैवल कर रहा है विथ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, है ना। बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, अगर इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है ना F, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी चेंज होके क्या बन जाता है, फाइनल वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जाता है। और इनिशियल से फाइनल कन्वर्ट होने में कितना समय लग गया, t सेकेंड लग गया, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, and you will get this one. Now rate of change in momentum, चेंज इन मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम विल गेट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये मिल गया ना हमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो देखो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, और एक चीज देखना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए बाय एम ए ओनली। वाई, बिकॉज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये मिला था ना, दिस वन। तो हम क्या करेंगे, v माइनस यू बाई टी के जगह पे a निकालेंगे, तो हमारे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो f प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहाँ पे इक्वल लाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं, दैट कांस्टेंट इज k। अगर ये k का वैल्यू 1 लेते हैं देन what equation will get, f equal to ma. So this equation you got, and this is very crucial while solving the numericals. अब इसका यूनिट जानते हैं f का। now f equal to ma, नो, तो m का यूनिट क्या होता है, kg, that mass is kg and acceleration a is meter per second square। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, सपोज ये जो बॉडी लिया इसका मास कितना है, 1 kg है ना। ये बॉडी का जो मास है ये 1 kg है, और कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इट प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per second square, then ये फोर्स एक्ट कितना हो रहा है, 1 न्यूटन हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट सी व्हाट इज देयर इन द, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो देखिए क्या है ये, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल, है ना। जब हम लोग कैच करते हैं ना बॉल को, तो क्या करते हैं हम लोग कि इस तरह से कैच नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा जो हैंड है ना उसको बैकवर्ड नीचे की तरफ लाते हैं और फिर बॉल को स्टॉप करते हैं, है ना। स्टार्ट यहाँ से होता है लेकिन हमको ख़त्म इस जगह पे करना है ना। तो वाई इट इज़ डन, टू इंक्रीज द टाइम, टू इंक्रीज द टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लग रहा है और यहाँ पे क्या रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक यहाँ से हम यहाँ तक ये प्रोसेस करते हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लगता है। और हम लोगों को पता है कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, whereas इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखो जो फोर्स होता है ना वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल किसका, टाइम का। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, देखो इस केस में जो है टाइम क्या हो रहा है, हम लोग अगर बैकवर्ड करके कैच पकड़ते हैं तो टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स अप्लाई कितना होगा, कम होगा। तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स अप्लाई विल बी लेस, तो हमारे हाथ में इंजरी बहुत कम होंगे।
एग्जाम्पल, वाई डज एन एथलीट पुट सम सैंड्स और कुशन ऑन अ ग्राउंड वाइल जंपिंग? द रीज़न इज सेम, जो हमने क्रिकेटर्स के लिए देखा था वही सेम रीज़न है। अगर ये सॉफ्ट बेड होगा ना, कुशन है या सैंड है, तो क्या होगा, हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, टाइम इज, वी नो दैट टाइम इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है हमें, मोर, तो फोर्स अप्लाइड क्या होगा, लेस। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड क्या होगा, लेस होगा। सो वी विल नॉट हैव इंजरी। लेस फोर्स अप्लाई होगा तो ज़्यादा इंजरी नहीं होगा अगर हम गिरेंगे भी तो। अंडरस्टैंड दिस, एंड द आंसर इज गिवन हेयर, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट example is, a karate player can break a pile of tiles or a slab of ice with a single blow of hand. The reason is again same। इसमें क्या होता है कि कराटे प्लेयर जो होता है ना, वो बहुत फास्टली ये ब्लो करता है टाइल्स पे या स्लैब ऑफ आइस पे। तो इस केस में क्या होता है, द टाइम इज लेस, टाइम इज वेरी वेरी लेस, वेरी फास्ट क्योंकि स्ट्राइक करता है तो टाइम क्या होता है, बहुत लेस, कम समय कराटे प्लेयर को लगता है। एंड टाइम क्योंकि कम लगता है ना, टाइम इज लेस, टाइम अगर लेस है तो फोर्स विल बी मोर। तो फोर्स क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, आसानी से ये टूट जाएगा, है ना, पाइल ऑफ टाइल्स या स्लैब ऑफ आइस टूट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब लगाते हैं ना तो हम लोग इतनी फास्ट जो है अटैक नहीं कर पाते हैं, फास्ट ब्लो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फास्ट ब्लो नहीं करने के कारण टाइम उसमें क्या होता है, मोड़ होता है ना, टाइम मोड़ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है ये टाइल्स पे, वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो लेस फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, टाइल्स नहीं टूटेगा, नहीं ब्रेक होगा। सो ये लॉजिक है इसके लिए। नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको हम लोग समझते हैं इस डायग्राम या ये फिगर से, ठीक है ना। तो अगर हम इस बॉल को ग्राउंड की तरफ विथ अ फोर्स एफ, है ना, बाउंस करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होगा, दैट इज एक्शन, दैट इज आवर एक्शन। और ये रिएक्शन में क्या करेगा ग्राउंड, कि उसी फोर्स, उसी मैग्नीट्यूड से, है ना, ये बॉल को वापस इन द अपोजिट डायरेक्शन उसको उछाल देगा, एंड दैट इज आवर रिएक्शन, है ना। तो न्यूटन्स ने बोला है कि हर एक्शंस का क्या होता है, अपोजिट एक रिएक्शंस होता है, अपोजिट और इक्वल रिएक्शंस होता है। तो देखो, जिस फोर्स से, जिस मैग्नीट्यूड से हमने इसको बॉल को बाउंस किया था ग्राउंड पे, इन द सेम वे, है ना, उसी मैग्नीट्यूड के साथ, उसी फोर्स के साथ ग्राउंड ने बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया, है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस इस तरह से होता है इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस है ना, ये बहुत सारे केसेस में आता है, जैसे इन केस ऑफ स्विमिंग, इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस होल्ड करता है। तो देखते हैं जो स्विमर्स होते हैं ना, वो वाटर को पीछे की तरफ, है ना, बैकवर्ड पुश करते हैं, सपोज एफ फोर्स से पुश कर रहे हैं। इन द सेम वे वाटर क्या करता है, स्विमर्स को विथ सेम फोर्स एफ उसको आगे की तरफ पुश करता है। तो स्विमर्स वाटर को पुश करता है, दैट इज एक्शन, और वाटर स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, पुल करता है, दैट इज रिएक्शन। तो इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ वर्क में हमारे हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। ये रॉकेट भी जो होता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ पे ही बेस्ट है। तो देखते हैं, ये रॉकेट जब चलती है ना, जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इससे बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गैसेस निकलते हैं, है ना। और ये हॉट गैसेस जो होते हैं ना,
बहुत फास्ट ट्रिमेंडसली विथ ग्रेट प्रेशर बाहर निकलते हैं, दैट इज एक्शन। और इन टर्न ये गैसेस क्या करते हैं, रॉकेट को ऊपर की तरफ, है ना, पुल कर देते हैं, एंड विद द सेम फोर्स, एंड दैट इज द रिएक्शंस। नेक्स्ट, हाउ डू वी वॉक। हम लोग जब चलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब हम लोग चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, एंड इन टर्न ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुल करते हैं। इस तरह से हम आगे चल पाते हैं, है ना। सो वी पुश द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन, एंड द ग्राउंड पुशेस अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें बोला गया है, फॉर अ collision occurring between two objects in an isolated system, the total momentum of two objects before the collision is equal to the total momentum of the two objects after the collision. Means total momentum before the collision is equal to the total momentum of two objects after the collision. इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं in the next slide. Suppose an object A moving with initial velocity u1 and mass m1, and another object B mass m2 and initial velocity u2, है ना, they got a collision, okay, and after the collision the velocity changes to v1 and v2, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 u1 of A, and initial momentum of object B is m2 u2, whereas final momentum हो गया A का m1 v1, whereas final momentum of object B is m2 u2। और हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन A ड्यूरिंग कॉलिशन कितना हो जाएगा, दैट इज m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इन द सेम वे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन B ड्यूरिंग कॉलिशन कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई t। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग अभी जस्ट पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो माइनस साइन दिया ना, अपोजिट रिएक्शन है। तो यहाँ से हमको मिला दिस वन एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन। तो दोनों को इक्वल कर दिया विथ नेगेटिव साइन, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा। तो क्या मिला, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है प्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे, एक न्यूमेरिकल्स लेंगे और इसको सॉल्व करके हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो लेट फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास 4 kg है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो राइफल को जब हम लोग राइफल से जब हम लोग बुलेट को शॉट करते हैं ना, तो बुलेट दैट इज एक्शन, जो बुलेट बाहर आगे की तरफ जाता है दैट इज एक्शन, एंड इन टर्न बुलेट जो होता है राइफल को पीछे की तरफ ढकेलता है, एंड दैट इज रिएक्शन। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ राइफल हो गया 4 kg, मास ऑफ बुलेट हो गया दैट इज 50 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो दैट इज 0.05 kg। रिकॉयल वेलोसिटी को v1 ले लेते हैं हम लोग, एंड बुलेट इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v2 35 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि इनिशियली क्या होता है, दैट राइफल रेस्ट में रहता है, और राइफल अगर रेस्ट में है तो बुलेट भी क्या रहेगा, रेस्ट ही में रहता है। तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेस्ट में रहता है, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। बट टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग विल बी m1 v1 प्लस m2 v2,
वैल्यू बैठाएंगे, दैट इज M1 इज गिवन 4 kg इंटू V1 प्लस M2 V2, और M2 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे दिया है 0.05 इंटू 35 करेंगे V2, यू विल गेट 1.75। और हम लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कलिशन एंड इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, सॉरी यहाँ फायरिंग यूज करना चाहिए हमें। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग इज दिस वन एंड टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग इज 0, तो इसको दिस इक्वल टू 0 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो V1 का वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, दैट इज 0.4375 मीटर पर सेकेंड। और इसमें नेगेटिव साइन जो मीन्स रिकॉइल बैकवर्ड जाता है ना गन राइफल, इसीलिए इसको नेगेटिव में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।